بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لبیک یا حسین۔ ناظرین کرام، ایک ایسے مقام پہ آپ کو آج زیارت کرانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ گھر بیٹھ کے پوری دنیا میں جو لوگ نہیں آ سکتے وہ زیارت کریں، جو آ چکے ہیں وہ بھی اس مسجد کے بارے میں، اس مقام پہ بارے میں یقیناً جان لیں گے۔ عجیب مسجد جو پہلے چرچ ہوا کرتی تھی، یہ وہ مسجد تاریخ میں اس کے مد مقابل شاید ہی کوئی مسجد ہو، اور لفظ مسجد جہاں سجدہ کیا جائے، عبادت کی جائے، اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں مختلف مساجد ہیں، ان کے فضائل ہیں، اور کچھ ان مساجد میں سے ایک ایسی مسجد ہے جو آثار حسینیہ سے جو ہے تاریخ میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ 11-12 محرم اسیران کربلا جب اسیر ہو کر کوفہ پہنچے تو پہلی مرتبہ کسی جگہ پہ کٹے ہوئے سر حسین یعنی نواسہ رسول امام حسین کے سر اقدس کو کس جگہ پہ رکھا گیا، یہ وہ مسجد ہے۔ جب نیزے پہ بلند سر دیکھا، اس مسجد کی در و دیوار نے یہ سلام کیا، سلام علیک یا ابا عبداللہ ایھا الغریب یا عطشان۔ یہ مسجد جو حنانہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، یہاں سے جب میرے مولا مشکل کشا شیر خدا کا کوفہ سے نجف اشرف وادی کی طرف جنازہ لے کے جا رہے تھے، وہاں پر اس مسجد نے یہ سلام کیا، سلام علیک یا امیر المومنین۔ نیزے پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو سلام کیا۔ ایک مشکل کشا شیر خدا علی بن ابی طالب کے جنازے کو دیکھا تو اس مسجد نے جھک کر سلام کیا۔ یہ ایام جس میں آپ پورے محرم کے یہ 17-18 دن نواسہ رسول امام حسین کو پرسہ دیتے ہیں، کبھی لنگر چلا کے، کبھی سبیلے چلا کے، کبھی جلوس میں شریک ہوتے ہوئے، کبھی فرش ادا بچھا کر، کبھی ذکر کرتے ہوئے، کبھی نوحے پڑھتے ہوئے، کبھی نوحے سنتے ہوئے، ہر وقت یا حسین کرتے رہتے ہیں۔ آئیں مل کے نواسہ رسول خدا بی بی فاطمہ زہرا کے اس لگتے جگر امام حسین کو پرسہ دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام جہاں پہ میرے آقا حسین علیہ السلام کے سر اقدس کہا جاتا ہے، سر ایک رات نہیں کہا، ایک سر نہیں، 72 شہیدوں کے سر اس مسجد میں رکھے گئے۔ اور یہاں پہ ایک مقام ہے جسے مقام رأس الحسین کہا جاتا ہے۔ یہ کوفہ اور نجف اشرف کے درمیان والی چیز جو ہے علاقہ مقام ہے۔ ان کے سامنے حضرت کمیل کا روضہ ہے۔ یہاں پہ زائرین جو دنیا سے آتے ہیں اس مقام پہ، اس مسجد میں ضرور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام، مختلف علماء نے ذکر کیا ہے، منسوب روایت جو ہے امام جعفر صادق، جب آپ اس مسجد میں پہنچے ایک مقام پر زارو قطار آپ نے گریہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ آپ رو رہے ہیں اس مقام پر، اس گریہ کا سبب؟ کہا کہ یہاں پر میرے دادا حسین کے سر اقدس کو رکھا گیا۔ پہلی مرتبہ جب کوفے کی بازاروں کو، درباروں کو سجایا گیا، راہب نے ایک رات یہاں پہ لی تھی، سر حسین کو اور گلے سے لگایا اور یہ کہتے ہوئے، اے مسلمانوں کچھ تو شرم کرو، تمہارے نبی کا نواسہ حسین جس لبوں پر رسول خدا بوسہ دیا کرتے، جو فخر امام علی ہے، جو زہرا کا لخت جگر ہے، جو تمہارے جنت کے جوانوں کا سردار ہے دنیا اور آخرت میں، ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم! اللہ اکبر! ظلم کی انتہا تاریخ رقم کر دی۔ جیسے آپ دنیا میں ظلم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ مسلمان خاموش ہے، تو یہ ظلم اس سے کئی زیادہ، کیونکہ یہ جو ظلم تھا وہ صرف مولا حسین کی ذات پہ نہیں، رسول خدا اور قرآن، اہل بیت، دین اسلام پہ ظلم تھا۔ اور پھر ایسا پرچم بلند کیا میرے مولا حسین نے، ایسے دین کو بقا کی کہ پوری دنیا میں تلاوت قرآن، آذانیں، نمازیں، سجدے بہترین طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ چلتے ہیں نواسہ رسول کے اس مقام پہ جہاں امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو رکھا گیا۔
या हुसैन, इस वीडियो को जो भी शेयर करे मौला हुसैन उसे करबला की ज़ियारत नसीब करे, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या फातिमत ज़हरा, आपके हुसैन का पुरसा। या रसूल अल्लाह, आपके नवासे हुसैन का पुरसा। एक तस्वीर यहाँ पे कदीम ज़माने से पड़ी हुई है। उस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक तस्वीर लगाई गई है, जिसमें एक राहिब ने जब सर हुसैन का आपने सौदा किया और एक रात के लिए उस सर को अपने सामने रखा और सीने से लगाया और पत्थर पे सर हुसैन की वो नक्श बनाई, उसकी एक अक्स यहाँ पर रखी गई है। और ये वो मकाम है जहाँ पे नवासे रसूल इमाम हुसैन का कटा हुआ सर इन अयाम, इन दिनों में इस मकाम पर रखा गया जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते रहे और नवासे रसूल इमाम हुसैन का कटा हुआ सर देखते रहे। जब उनको पता चला कि ये रसूल खुदा के नवासे वक्त के इमाम हुसैन हैं, रोने के सिवा उनके हाथों में कुछ नहीं था। फिर मौला हुसैन ने, बीबी उम्मे कुलसूम ने इसकी कूफा में खुतबा दिया। जब औरतों को पता चला कि ये अली की वो बेटियां हैं जो यहाँ शहजादी बन के रहीं, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब आलिया, औरतों ने माफ़ी मांगी और रोने लगी ज़ारो कतार। बीबी उम्मे कुलसूम ने इन अयाम में इन कूफे के मकाम पर कहा, तुम्हारे मर्द मेरे बाबा को मार कर, मेरे भाइयों को, मेरे भतीजों को, मेरा घर उजाड़ कर अब तुम औरतें रो रहे हो और तुम्हारे मर्दों ने ये जुल्म किया। एक कूफे वालों, अनकरीब तुझ पे अजाब आने वाला है और ऐसा अजाब जो खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम जुल्म पे खामोश रहे। वो मौला सज्जाद के पास उनके मर्द आते हैं और कहते हैं कि मौला हमें माफ़ करे। तो मौला सज्जाद फरमाते हैं कि तुमने इससे पहले भी मेरे दादा अली को शहीद किया इसी कूफा में, आज मेरे बाबा का सर काट के इस कूफा में लेकर आए हो। ए मुसलमानों, तुम्हारी क्या गैरतें मर गई हैं कि तुम मेरे नाना की आज़ानें भी देते हो और उनके नवासे का सर काट के बाज़ारों में लेके जाते हो। अपनी औरतों को तुमने चादरें पहनाई हुई हैं, जो चादर ततहीर की मालिका हैं, उनको सर नंगे कूफे में लेकर आए हो। या हुसैन, या हुसैन। यहाँ पे भी बड़ा अफसोस होता है उन खवातीन पर जो सर नंगे मर्दों के दरमियान मातम करती नज़र आती हैं और ज़हरा की चादरों पर, उन सैयदजादियों की चादरों पे रोती हैं और उनके सरों पे चादर नहीं होती। ये वो कूफे का मंज़र होता है जिससे हमारे आइमा अलैहिस्सलाम को बड़ी मुश्किल होती है। और वो मर्द जो ख़ुद किसी और पे जुल्म करते हैं और रोते हैं मौला हुसैन की मजलूमी पर, ये भी उन कूफियों में से हैं कि जो कूफे में मौला सज्जाद के पास आते हैं और रोते हैं और मौला सज्जाद कहते हैं कि तुम खुद जुल्म करते हो और हम पे, हमारी मजलूमी पे रोते हो। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद हनाना है। रिवायत में ये कैसे पता चला कि ये मस्जिद जो है इस फजीलत की मालिक है, चलें देख लें। मस्जिद हनाना मिन मसाजिद शरीफ़ा अल क़दीमा, कदीम मस्जिदों में से एक मस्जिद है और आसार हुसैनिया में से एक है। और मकाम मुक़द्दसात व अमन आसार अल हुसैनिया फ़ी मदीनत नजफ़ अल अशरफ वरद फ़ी किताब अल ग़री फ़रहत अल ग़री इंदमा सुइल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम अन फ़ी तरीक़ अल ग़रयैन क़ाल इंद तशय्युअ जिस्मान अमीर अल मोमिनीन अली मिन दारही फ़िल कूफ़ा इला मरकज़ शरीफ़ फ़ी मदीनत नजफ़ अल अशरफ इंदमा मर्रु बिजिस्मान ताहिर और वहादल मकान इन हनात जितरान मस्जिद एहतरामन व तअज़ीमन व आसपन अला मसाइब अमीर अल-मोमिनीन। मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब का जनाजा यहाँ से जब गुजर रहा था तो इस मस्जिद ने झुककर मौला के सलाम किया और गिरिया किया, मसाइब और एहतरामन ये झुकी। इसी तरह वो रवायत है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इंदमा वसल हादल मकान, इस जगह पर जब पहुँचा जिसकी मैंने आपको भी ज़ियारत कराई, सल्ला रकातैन, आपने रकात नमाज पढ़ी। वमा वलम्मा सुइला अन हादल मौज़ू, इस मकाम के बारे में पूछा गया इस जगह पे, क़ाल हादल मौज़ू रस जद्दी अल हुसैन, ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे दादा हुसैन का सर अक़दस रखा गया।
कमा ज़कर शेख मुफीद अल्लामा मजलिसी फ़ी किताब मज़ारात व शेख अब्बास क़ुमी फ़ी किताब मफ़ातिल जिनान इन्नहु इंद मसाइल जाअ व अब्रस व रअसल हुसैन व सबाए आल मोहम्मद में अर्ज़ मारकत फ़ी करबला इला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद फ़ी कूफ़ा व बातू फ़ी लैल हादल मकान लैलन व अदखुलुहा कूफ़ा नहारन। एक रात यानी 12 मुहर्रम को यहाँ पे सरे हुसैन को और 13 मुहर्रम को या 12 मुहर्रम की शब को यहाँ पे रखा गया और 12 मुहर्रम की सुबह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन की दरबार दारुल कसरुल अमारा जो है वहाँ पर लेकर गए थे। तो ये तारीख जो रवायात से ज़िक्र है इस मकाम के बारे में, वक्त के इमाम जाफ़र सादिक ने इस मकाम के बारे में निशानदही की और जिस वजह से आज पूरी दुनिया से ज़ायरीन किराम इस मकाम पर आते और मोहम्मद व आले मोहम्मद को पुरसा देते। ये मस्जिद हनाना जो पहले चर्च हुआ करती थी और उसके बाद मस्जिद की शक्ल में इस वक्त मौजूद है, ये मज़लूम करबला इमाम हुसैन के आसार हुसैनिया में से एक कहलाई जाती है और ये कूफा और नजफ़ के दरमियान एक शहर है। कूफा और नजफ़ के दरमियान एक इलाका है और मस्जिद हनाना। इसी मस्जिद के सामने इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो सहाबी जलील क़द्र जिसे कुमैल इब्न ज़ियाद, जिसने मौला ने दुआए खिज़र का नाम तब्दील करके जनाब कुमैल के नाम पे वो दुआ मंसूब की, जो आज भी पूरी दुनिया में शब जुमा में पढ़ी जाती। ये जो तस्वीर है ये कदीम नहीं है इतनी ज़्यादा और इस तस्वीर का इस मकाम से जो ताल्लुक़ है वो ये है कि एक वाक़या बयान करती है। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से राहिब ने एक रात के लिए सर हुसैन मांगा, ये कह कर के तुम मुसलमानों को इतनी शर्म नहीं कि तुमने अपने नवासे रसूल के नवासे हुसैन का सर काट कर और बेहुरमती करके और इस तरह कर रहे हो कि जिससे सर से तिलावत कुरान आ रही है और तुम मुसलमानों ने जिसका कलमा पढ़ा और उसके नवासे के साथ इतने जुल्म। खुदा की लानत हो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और लश्कर यजीद पर, उन मुसलमानों पर जो मौला सज्जाद की मजलूमी देख कर तो रो रहे थे और मौला सज्जाद ने ये जुमला कहा, तुम लोग हम पे जुल्म भी करते हो और फिर हमारी मुसीबतों पे रोते भी हो। और उन औरतों को भी उम्मे कुलसूम बीबी ज़ैनब ने कहा, तुम चादरों में और हम बेचादर कूफा की बाज़ारों में। ये एक ऐसा खुतबा है उन लोगों के लिए जो जुल्म करते हैं और नवासे रसूल की मजलूमी पे रोते हैं। यकीन वो रोना भी उनके काम नहीं आएगा। वो बेचादरें औरतें जो खुद पर्दा नहीं करती और पर्दे में नहीं रहती और गिरिया करती हैं बीबी सैयदजादियों के इन मजलूमियों पर। अल्लाह अकबर। एक तारीख है जो किसे मिटाया नहीं जा सकता। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन मकाम मुक़द्दसात की आप सबको ज़ियारत नसीब करे। कुआं है इसी मस्जिद के सामने। काफ़िले जब किसी ज़माने में आते थे तो यहाँ पर चंद कुएँ ऐसे कूफा में और नजफ़ में जहाँ पर काफ़िलों की कसीर तादाद रुकती थी। इन कुओं की वजह से नमाज की आसानी होती थी। यहाँ पे वज़ू करके नमाज पढ़ते थे या गुस्ल वगैरह किया जाता। कूफा एक खामोशी का नाम है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है। जुल्म पे खामोश रहना कूफियों में शुमार होने के बराबर है और इमाम ने भी यही फरमाया, जो लोग जुल्म को देख कर खामोश रहते हैं और ये सारी बातें अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह फैसला करेगा। फैसला तो अल्लाह करता है मगर तुमसे भी हिसाब होगा कि तुम जुल्म पे मुसलमान हो के कैसे खामोश रहे। अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की क्यों नहीं तुमने लब्बैक किया। लब्बैक या हुसैन मकाम रासे हुसैन मस्जिद हनाना। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दुनिया का हर मुसलमान जब इस ज़ियारत के लिए आए तो उसको पता चले कि ये कौन सी जगह, कौन सा मकाम, कौन सी ज़ियारत है। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर मुसलमान तक ये वीडियो जाए। लब्बैक या हुसैन। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ज़ियारत हैं।